Hello, welcome back to my YouTube channel. This is Pooja and I hope you guys are doing good. I swear it was all sunny just a minute before, and that is why I decided to shoot this video today, because how else am I gonna find some time to find good lighting in a godforsaken country like this? But then again, there's a big cloud over the sun, and now we have to shoot like this. Like I can't help it. It's what it is. Even then, I'm in a happy mood. That is all that matters, because yeah, it is a bit sunny and I am off to Westminster Abbey. Finally, after all these years of living in this country, I am gonna visit the Abbey, and it's one of the top attractions. It's a historical place. You can find the crypt of Newton there, and besides other things. So I'm very excited. But before that, because I'm all dressed up and as promised, I'm going to talk about the second chapter of my, stay in London, sort of the last leg. And it's also part of the series that I'm doing on my story, my journey through life, different stages, and what I just learned from them. This is just part of that series, and as I speak today, this is my last week in London, and it's sort of an end to this chapter. And of course, I'm gonna be nostalgic. I'm gonna be talking about a lot of things, my love for London and my love-hate relationship that I had with this city. But having said that, I think even though I'm not gonna live here now, but even then I feel this city is always going to be the city that I moved outside of India, like the first city outside of India that I lived in, and then I also learned how to live on my own here. I sort of like I have explored it a lot on my own by walking and by knowing the know-hows of how things operate, like the public transport and the weather, and what to expect, what not to expect. And so in that regard, it's gonna be my first teacher in that sense, and I'm always gonna love it no matter what I say in this video next. From this point on, this video is going to be in Hindi, because I made a personal choice of talking about my story in my native tongue, because I feel more comfortable in it, and I also feel like all of the things that I'm feeling, I'm able to bring forward better when I'm talking in Hindi. So please bear with me. I hope you guys still enjoy the video and have some takeaways from it as I speak. So without further ado, let's get into this video. तो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बात की थी कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही थी लंदन में. फर्स्ट ईयर बहुत रॉकी चल रहा था, मतलब मेरे पास घर भी नहीं था. आई बेयरली मेड इट थ्रू अ जॉब. मैंने किसी तरह अपना जॉब सेव करा, एंड आई लॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ. नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ. माई मेंटल हेल्थ पहले भी ख़राब ही रहती थी, और आप ऐसे इमेजिन कर ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी. ना तो मेरा पार्टनर है मेरे पास, ना मेरी फैमिली है मेरे पास. कुछ फ्रेंड्स हैं, बट फ्रेंड्स ही होते हैं एक पॉइंट तक, राइट. और सबकी लाइफ आगे चल रही होती है. सबकी लाइफ में सब लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. एवरीवन इज़ जस्ट बेयरली मेकिंग थ्रू देयर लाइफ ना, कि एवरीवन वांट्स टू बिल्ड देयर लाइफ. तो सब अपना अपना चल रहे हैं. उसमें कितना मुश्किल हो जाता है किसी को भी बैंडविड्थ देना, वो तो होता ही है. तो फ्रेंड्स हैं अपनी जगह, बट आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली. और ऑफ कोर्स मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. तो जब वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ना, मैं एक ऐसे स्टेट में भी आ गई थी जिसको कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, विच मीन्स कि बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग कि जो भी मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि हो रहा था कुछ कुछ बुरा, मतलब देयर वॉज फैक्चुअल एविडेंस ऑफ इट. तो कुछ भी मेरी लाइफ में अगर अच्छा नहीं होने वाला है तो मैं खुद से जाके ही उसको ख़राब कर देती हूँ. कुछ भी अच्छा भी हो रहा है तो एक नेगेटिव माइंड आके बोलेगा कि तुम डिज़र्व नहीं करते हुए हो, तो जाके तुम इसको बिगाड़ दो. तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एक्टिंग आउट, और being mean to people, or just a cry for help, right? But वो cry for help लोगों को दिखता भी है ना, तो भी कोई तुम्हें हेल्प करने नहीं आएगा. प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड, क्योंकि
ऐसे मैंने बोला ना, सबकी अपनी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई मेडल नहीं करना चाहता और कोई वो बर्डन भी नहीं लेना चाहता, एक्सेप्ट इफ़ इट इज़ योर फैमिली और इफ़ इट इज़ योर पार्टनर। उसके अलावा आपके लिए उस कैपेसिटी में बहुत ही कम फ्रेंड्स रहेंगे और फिर भी इन दी एंड आपको खुद ही करना है। ये बात मुझे तब नहीं समझ आई थी, बट देखो बाद में बहुत अच्छे से समझ आ गई ये बात। बट उस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा एक्ट आउट कर रही थी एंड आई रिमेंबर देयर वाज अ सोशल इंटरेक्शन में यू आर बिहेविंग स्टूपिडली, ये सब मैंने किया, ठीक है। आई एम कन्फेसिंग है कि सब कुछ मैंने किया और आई वॉज हर्टिंग अ लॉट। तो वन पर्टिकुलर इंटरेक्शन आई रिमेंबर इज देयर वाज अ सोशल सेटिंग, आई मेड अ कंप्लीट फूल आउट ऑफ माई सेल्फ। और जब मैं घर पे आई तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। और दिस इज़ अराउंड जनवरी लास्ट ईयर, और मुझे काफ़ी बुरा लगा। मतलब आई थिंक दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ, और वहाँ पे मेरे को लग गया कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, ये तो मैं नहीं हूँ। एंड थैंकफुली उस टाइम के अराउंड मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स थे, कुछ फ्रेंड्स मेरे यहाँ नहीं रहते, बट आई हैव सम वेरी गुड लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स, तो मैं उनसे डिस्कस कर रही होती हूँ जैसे जैसे चल रहा है लाइफ में। तो उन लोगों ने भी मेरे को काफ़ी दे put so much effort into loving me at that point. If you guys are watching this, like, thank you, like you really saved my life there. So they started loving me so much. I had to start believing in love again, and my partner also put in a lot of effort in loving me as much as he can, which is like I feel very lucky to be that person in that person's life. तो सब लोगों ने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। तो उस पॉइंट पे आई थिंक इट इज़ जस्ट अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि आप जब रॉक बॉटम हिट कर जाते हो तो आपको फिर दिमाग बोलता है कि अब तो हो गया ना, अब आगे बढ़ो, ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। तो मेरे को एक स्ट्राइक करी वो चीज़। तो नेक्स्ट डे आई जस्ट गॉट अप एंड बहुत ठंडी वाला दिन था, फेब और जनवरी, लाइक अर्ली फेब जनवरी, कोई ऐसा बहुत गर्मी नहीं होती है। तो आई स्टार्टेड रनिंग। मैंने कहा ठीक है, आई हैव माई गियर, आई हैव माई शूज़, मैंने इनको यूज़ नहीं किया है बहुत टाइम से, और मैंने कुछ भी अपना जैकेट यूज़ नहीं किया है, तो लेट मी जस्ट गो आउट एंड डू इट। तो वो फर्स्ट रन था मेरा, और मैं आई क्लियरली रिमेंबर इट बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो शिटी, इवन देन आई वेंट आउट। एंड या बिफोर दैट आई गॉट दिस अपार्टमेंट। काफ़ी मुश्किल से मिला मुझे, जनवरी में मिला था, मैं सारी जगह ढूंढ रही थी, मैं बीच में एयरबीएनबी में रह रही थी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था, और यू नो लंदन में रेंट्स कितने ज़्यादा हाई होते हैं। सरप्राइजिंगली आई गॉट दिस अपार्टमेंट, और मैं काफ़ी ज़्यादा लकी फील करती हूँ उस सेंस में भी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, और मेरी फ्लैटमेट्स बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, और आई गॉट दिस रियली लवली व्यू आउटसाइड माई विंडो। आई फील लाइक मेरा फ्लैट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट फ्लैट्स इन लंडन, एंड द रेंट वॉज फेयरली रीजनेबल, एवरीथिंग was good. So that was another determining factor in my mental health कि मेरे को मेरा स्पेस मिला, और फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से सजाया, और फिर मैंने अपनी बुक्स लगाई, और फिर मैंने अपना डेस्क सेटअप करा। धीरे धीरे वो चीज़ें भी बनती गई। तो जब वो एक अनसर्टिनिटी में ना किसी को भी नहीं जीना चाहिए मेरे हिसाब से। सम थिंग्स शुड बी क्लियर, और एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ यू नो क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो तो है ही, बट लाइक एक आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड फॉर इट, बट लाइक वो होता है ना जब आप गिर जाते हो, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट, लाइक काइंड ऑफ लाइक एन एयर मैट्रेस या क्या, जहाँ पे आप बाउंस बैक कर सको। आप वापस आए हो अपने, मतलब ऑफिस जा रहे हो, वापस आओ तो आपका घर आपकी सेंचुरी होनी चाहिए। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ उसमें, और मुझे वो अच्छा लगता है। तो वो सर्टिनिटी तो थी नहीं मेरे लाइफ में 1 साल तक, बट उसके बाद जब वो मेरे को मेरा घर मिला तो मैं काफ़ी खुश थी, और मैंने एक्चुअली लाइक बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने लगी मैं उस चीज़ के लिए। और फिर मैंने रनिंग भी स्टार्ट करी उसी टाइम के अराउंड। अब थिंग्स धीरे धीरे चेंज होती है, एकदम से तो चेंज होती नहीं। स्टिल मेरे को लाइक काफ़ी बुरा लगता था चीज़ों का, बाहर जाने का, और सोशली मैं वैसे ही थोड़ी सी ऑकवर्ड हूँ। एंड उसके बाद मेरे को लाइक आई बिलीव इन हैविंग लाइक डीपर कनेक्शंस। some people don't, like some people are okay with having some some people are okay with having no connections at all actually. तो that is how people go by, but मेरे लिए quality matters more than quantity वाला सीन है। तो हाँ, तो हर जगह आप फिट इन भी नहीं कर पाते, तो मुझे काफ़ी वो भी डिफ़िकल्टीज आती रहती थी, आती ही हैं।
बट या एज ए सेड, एक बार मैंने रनिंग स्टार्ट करी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। अच्छा नहीं, एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता था शुरू में, इट वॉज स्टिल वेरी हर्टफुल। तो काफ़ी सारी जो भी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही थी उसके बारे में मैं सोचती थी। जब मैं रनिंग करने जाती थी तो मैं ओवर एंड ओवर अगैन वो थॉट्स मेरे को आते थे। बट बिकॉज व्हेन यू आर रनिंग, आपका फोकस उस पेन से शायद दूसरे पेन पे शिफ्ट हो जाता है, या फिर इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ चैनलिंग योर एंगर एंड योर हर्ट एंड एवरीथिंग। तो वो रोज़ रोज़ मैं कर रही हूँ, रोज़ जाके मैं सोच रही हूँ क्या हुआ, फिर जाके फिर से सोच रही हूँ क्या हुआ, फिर जाके फिर से सोच रही हूँ क्या हुआ। कितनी बार सोचोगे, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। फिर मैंने रनिंग, एक पॉइंट ऐसा भी आया व्हेन आई गॉट दिस बैंड। तो फिर उससे पहले मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत अच्छी रनिंग नहीं कर रही हूँ। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं एक नंबर या स्टार्ट पुट कर दूँगी अपनी इस एक्टिविटी पे, तो मैं फिर से द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई विल बी वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ। बट ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली। जब मेरे पास ये बैंड आया तो मैंने एक्चुअली नंबर्स देखे और देख पाई कि अच्छा मैं इतना ही रन कर रही हूँ क्या, चलो लेट मी जस्ट अप इट। तो फिर देन आई स्टार्टेड स्लोली, लाइक बीइंग काइंड टू माई सेल्फ, बट ऑल्सो हैव दैट ग्रोथ माइंड सेट कि नहीं यार, थोड़ा सा इफ आई एम स्पेंडिंग सम टाइम, let me just try a little bit more, let me just try a little bit more, let me just try a little bit more. And this little bit more just took me a long way. I can't tell you how this just feeling of let me set a target for myself is this, I'm just gonna go to this pole and I'm just gonna run till here, and चाहे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, आई डू इट, आई मेक इट। एंड इफ समवन रन्स दे नो कि इट्स नॉट ऑल रोजी, इट इज़ वेरी पेनफुल। आप पूरे स्वेटी होते हो, चाफिंग एंड लाइक धूप हो रही है, और क्या कहते हैं पैरों में दर्द हो रहा है, ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, आप पूरे टाइम थक रहे हो, उसके बाद आके खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है। बट वो जो नंबर होता है ना कि मैंने आज इतना किया, ओ मैंने आज इतना किया, मैंने आज अपने आप को कल से बेटर कर लिया, तो वो फीलिंग ने ना मेरे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं तो ये बोलूँगी। और उसी वजह से ना मेरे अंदर फिर एक लर्निंग एटीट्यूड भी आया, और क्यूरियोसिटी जो खो गई थी वो भी आने लगी। तो उसी टाइम के अराउंड मैंने फिर स्विमिंग भी स्टार्ट करी। आई फील सो ग्रेट कि मैंने ना खुद को फिर से स्विमिंग सिखाती। मतलब मैं बचपन में स्विमिंग करती थी, बट आप भूल जाते हो। तो धीरे धीरे जाके ना मैं रोज़ जाके, फिर रोज़ नहीं, हाँ वीक में 2 बारी जाके आई यूज़ टू ट्रेन एंड आई यूज़ टू वॉच सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, और फिर मैं उसको प्रैक्टिस करती थी पूल में। और फिर धीरे धीरे मैं फिर लैप्स लेने लगी, फिर मैंने लैप्स को भी अप करा, और वो 2-3 महीने तक वो सिलसिला चला। बीच में तो छूट गया क्योंकि सर्दी आ गई, फिर मैंने नहीं किया। बट मुझे वो जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू taught me a lot. It took my mind off negative things. It took my mind off pointless things कि फालतू में हैंग आउट कर रहे हो लोगों के साथ, या फिर फालतू में ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं है, जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं ब्रिंग करते हैं। और जब मैं इतना बिजी रहने लगी ना, जब मैं इतनी सारी चीज़ें करने लगी, तो मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मेरा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब मुझे वो रियलाइज़ होने लगा ना, तो मैं धीरे धीरे सिर्फ उन्हीं जगह जाती थी, उन्हीं सोशल प्लेसेस में हैंग आउट करती थी, या उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करना पसंद करती थी जहाँ मेरे को लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू आ रही है। वैल्यू किस सेंस में, या तो मुझे उनके साथ अच्छा लगता है, या फिर मुझे लगता है कि ये लोग मेरे अपने लोग हैं, या फिर कुछ नॉलेज आती है, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो हिस्ट्री पसंद करते हैं, तो अगर मैं उनके साथ कहीं जा रही हूँ तो फिर हम लोग वो डिस्कशन कर लेते हैं, या फिर टीवी सीरीज़ के बारे में, या मूवीज़ के बारे में, या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर कुछ भी टाइप मोटिवेशन। अगर वहाँ पे जा रहे हो तो आपको फिर भी अच्छा लग रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा पिकी हो गई उस चीज़ में कि मैं वहीं पे हैंग आउट करूँगी जहाँ मुझे ठीक लगेगा, और मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट। पहले मेरे को लगता था कि मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है और कोई मेरे साथ हैंग आउट करना नहीं चाहता, या लाइक पीपल आर जस्ट नॉट लाइकिंग मी इन जनरल, बट विच इज़ नॉट ट्रू। एंड you have to flip, like everything is about perspective. You have to flip the perspective. How about जो लोग आपकी लाइफ में, वो भी आपके टाइम को वैल्यू करें, राइट? मैं ही नहीं सबके लिए सब कुछ करती रहूँ, और मैं ही ऐसे डोर मैट की तरह फील करती रहूँ। यू आर नॉट अ डोर मैट, लाइक स्टार्ट ऑफ बाय दैट. You should not be a doormat in anyone's life. You deserve better than that. You should not be people's last option. And ये बात मैं भूल गई थी कि मेरे जो पापा है वो, उन्होंने मेरे को इतने
इतने प्यार से बड़ा किया है, इतने नाजों से पाला है जो बोलते हैं। फिर मेरे पार्टनर मेरे को इतने अच्छे से ट्रीट करता है, लाइक मैं बता भी नहीं सकती, ठीक है। और उसके बाद मेरी फैमिली मुझे इतना प्यार करती है, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे प्यार करते हैं, तो मेरी सेल्फ वर्थ वो भी है ना, मतलब दे लाइक आई लव देम, सो दे ऑल्सो लाइक रेसिप्रोकेट दैट लव, so that speaks something about me, like your friends are also a reflection of yourself। तो मुझे वहाँ से वो मेरे पास एक लिविंग एग्जांपल था राइट उस चीज़ का। बट कोई बात नहीं, कभी कभी हम लाइफ में थोड़े से भटके हुए होते हैं, हमको नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, बट टाइम रहते समझ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑफ कोर्स, और दूसरी चीज़, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो राइट, लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब सबको ही पता होगा कि लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो वाई नॉट यू वॉन्ट टू मेक लाइक स्मार्टर डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। मतलब आपके कुछ एक्स गोल्स हैं, तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए भी ना बहुत मेहनत लगेगी, नॉर्मल मेहनत नहीं लगती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उसके लिए हाउ अबाउट यू मेक बेटर कनेक्शंस, हाउ अबाउट यू हैव फ्रेंड्स जो आपकी मेंटल हेल्थ इन्हांस करे रादर देन उसको नेगेट करने की। हाउ अबाउट आप अपने ऊपर वर्क करो, आप अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करो, बिकॉज दैट इज स्मार्ट राइट। समटाइम्स कॉन्फिडेंस टेक यू प्लेसेस वेयर योर टैलेंट डज नॉट, दिस इज वॉट इट इज। तो वर्क ऑन दैट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। तो हमेशा जब भी दो चॉइस है ना लाइफ में कि अब मैं ये करूँ या ये करूँ, तो थिंक अबाउट लाइक लॉन्ग टर्म थोड़ा सा और थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म थोड़ा सा, बट हमेशा ये सोचो कि अच्छा मेरे लिए क्या स्मार्ट है। थर्ड चीज़, बाउंड्रीज बनाना सीखना चाहिए। पहले मेरे लाइफ में शायद कोई बाउंड्रीज नहीं थी, बट फिर मैंने धीरे धीरे बाउंड्रीज सेट करना स्टार्ट किया फ्रेंड्स के साथ कि इतना तक इज ओके यार, ठीक है, इससे ज़्यादा मजाक भी मत करना मेरे साथ, और इससे ज़्यादा मतलब expect this much from me। And then you have inner circle, then you have outer circle, then every person has a different role in your life, but the only person that can help you is you। ये वाली चीज़ एक्चुअली मुझे रनिंग ने ही सिखाई, और मैंने एक और चीज़ करनी स्टार्ट करी उसके अराउंड वाज आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रेटफुलनेस। इससे पहले मेरा जो भी ट्रेंड रहा लाइफ में, उसमें यू नो आई वॉज फीलिंग वेरी अनग्रेटफुल कि मेरे साथ हर चीज़ ही खराब होती है। जो भी मैं चीज़ करने जाती हूँ उसमें मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाती है या फिर कुछ अच्छा नहीं होता। बट ये डिसाइड करने वाला कौन है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो मैं अपनी लाइफ किसी से भी कंपेयर करती रह सकती हूँ, मतलब जिंदगी भर कंपेयर करते रहो एंड यू विल नेवर बी हैप्पी, दैट हैपन्स राइट। बट योर लाइफ इज़ योर लाइफ राइट। अगर खराब भी है तो वो तुम्हारी ही लाइफ है ना पहले तो। दूसरी बात, फिर भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता है ना, तभी भी आपके पास कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो। तो मैंने वो करना स्टार्ट किया, लाइक जैसे मैंने बोला, ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स, ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। धीरे धीरे मेरी फिजिकल हेल्थ बेटर होने लगी, तो आई स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट। I started investing in relationship, like back home, calling my family more frequently, तो उसके लिए मैं फिर grateful feel करती। Started investing in having another relationship, like not another relationship, like a better relationship with my partner, because you know when you are mentally not stable, you don't feel loved, so it is very hard for you to also invest in a romantic relationship or a love kind of relationship or in companionship, because your glass is empty right, so you can't fill another person's glass। But I started making efforts, like better efforts, not just like कि यार मेरी mental health तो खराब रहती, you take all the slack। No, that is very unfair for your partner, and I still feel grateful that we stuck by each other in like my partner stuck with me in those times। तो मुझे काफ़ी ग्रेटफुल फील होता है। फिर मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी बहुत ज़्यादा स्वीट है, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो लोग भी स्वीट है, तो मैं उनके लिए ग्रेटफुल फील करने लगी। ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव, लाइक मैं पहले मेरे को खाना खाने में भी डिफ़िकल्टी होती थी, तो फिर मैं धीरे धीरे लाइक कुकिंग करने लगी राइट, खुद रोज़ कुक करती थी। और इवन दो मैं भाग के आ रही हूँ, मैं कितनी भी टायर्ड हूँ, तो आई स्टार्टेड बिकमिंग वेरी डिसिप्लिन। और जब मैं खुद से खाना बनाने लगी राइट, तो मैं इंजॉय भी करने लगी इस प्रोसेस को। और फिर उसके बाद मैं अभी आई लव फूड अ लॉट, तो मैं नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कुछ बनाती रहती हूँ, बट माई रिलेशनशिप विद फूड ऑल्सो इम्प्रूव मैनी फोल्ड्स। तो वो वाली चीज़ के लिए भी मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ। लाइक एक पॉइंट पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है मेरे पास एक जॉब होगा, ठीक है मैं दुनिया के अकॉर्डिंग अच्छा कर रही हूँ, बट अंदर से यू नो यू फील सो हॉलो।
But now I don't feel that hollow. I feel like really in sync with my self, like, and it took a lot of work. It took therapy, it took like effort from my friends, family, सब लोगों ने मेरी हेल्प करी और मैंने भी अपनी हेल्प करी, मैं ये बिलीव करना चाहूँगी. तो उस सेंस में मैं ग्रेटफुल फील करने लगी. एंड माई पार्टनर ऑलवेज सेज दिस थिंग दैट ग्रैटिट्यूड रेसिप्रोकेट्स, विच इज़ सो ट्रू. अगर आप थोड़ा सा, मतलब मुझे नहीं पता ये मम्बो जम्बो भी लग सकती है किसी को, बट अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में एमिट करोगे तो एक्चुअली आपको वैसे ही लोग आपके अराउंड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, जो पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करता है. मैंने देखा अपने अंदर कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई जो मुझे लगा कि दिस इज़ लाइक अ मिरेकल. आई कुड नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग्स थोड़े टाइम पहले, बट वो हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ओ मेरी लाइफ तो काफ़ी फुलफिलिंग है यार. मेरे पास ये लोग हैं, या मेरे पास ये अपार्टमेंट है, या मेरे पास ओह मैंने कितना अच्छा आज मेरा रनिंग का स्कोर कितना अच्छा हुआ. आई हैव दीज लेग्स. आई कुड नॉट लाइक थिंक अबाउट इट कि मैं बाहर भी चले जाऊँगी. मेरे को वॉक पे जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता था. ओ आई वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ माई बेड टुडे. मैं कितनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. एंड धीरे धीरे ना ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ना मोटिवेट करती है कि और बेटर करो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके. इट कुड बी एज स्लो एज यू वॉन्ट. मतलब सोसाइटी वॉन्ट्स टू बिलीव इन दिस सेंस कि आप कोई रेस दौड़ रहे हो और आप पीछे हो. मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीज़ों में पीछे हूँ, बट उस वजह से जो मेरे पास आज प्रेजेंट में मैं उसको तो डिस्काउंट नहीं कर सकती ना, और मेरे को कभी करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज थिंग्स कुड बी वे वर्स देन वॉट दे वर. It was hard, I would agree. I acknowledge that it was hard. But even then, I was able to make a life for myself. Then another thing, I was grateful for my Instagram page. I don't know how it started growing, and there were so many new people that started joining on this page. और लोगों को पसंद भी आने लगा, और लोग मुझसे बात भी करते हैं, अभी भी करते हैं, और लोग मुझे बहुत स्वीट मैसेजेस करते हैं. तो मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ उस चीज़ से कि नहीं यार तुम ठीक कर रहे हो, तुम सही बात पे जा रहे हो, एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, इट्स फाइन, ठीक है. तो वो तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में है ही. मैं कभी भी उसको भूल नहीं सकती. और जब मेरे पास सही में कुछ भी नहीं था तो मैं उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रही थी, तो मैं देख भी रही थी कि उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी. अब जैसा मैं सोचती हूँ इस पूरे चीज़ को, इज़ द थिंग इज़ दैट कि एक पॉइंट पे मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा. लाइक कुछ भी अच्छा होगा ये भी नहीं सोच सकती थी. और एक पॉइंट पे ऐसा भी था कि आगे रास्ता भी नहीं दिख रहा था कि अब क्या होगा, लाइक अब कुछ ऑप्शन भी है क्या. बट जब कुछ नहीं होता ना तभी भी कुछ तो होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना. एंड नो फीलिंग इज़ फाइनल. यू कैन नेवर टेल कि कल आपका वक्त कैसे बदल जाए. हर एक चीज़ वक्त वक्त की बात है. आपको एफर्ट करना पड़ता है, राइट, बट क्विट नहीं करना है यार. क्विट कर लोगे तो फिर वो है जो 1% चांस है ना, वो भी नहीं हो रहेगा, ठीक है. उस 1% चांस के लिए भी ना फाइट करना चाहिए. मैं हमेशा ये बोलूँगी, मतलब मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि उस 1% चांस के लिए भी ना फाइट करना. किस चांस के लिए? लाइक अपनी लाइफ को अपनी तरीके से बिल्ड करने के लिए, वो फ्रीडम के लिए, राइट. एंड आई नो माई डैड इज़ नॉट हेयर इन हिज फिजिकल फॉर्म, बट मैं हमेशा कुछ भी मैं जाती हूँ कुछ भी करने, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि वॉट वुड माई डैड टेल मी टू डू, एंड ही इज़ लुकिंग ओवर मी, विच ही इज़. ओके, आई बिलीव ही इज़ लुकिंग ओवर मी, एंड दैट इज़ वाई आई हैव बीन एबल टू मेक इट थ्रू. मैं ये भी बिलीव करती हूँ, बिकॉज ही विल ऑलवेज बी लुकिंग ओवर मी. तो वो जो ब्लेसिंग है वो कहीं पे भी नहीं जाती. और वो ब्लेसिंग आपके फ्रेंडशिप, आपके पार्टनरशिप, आपके पेरेंट्स, वो कहीं किस भी फॉर्म में आ सकती है, बट वो फ्रेंडशिप और वो लव इज़ वॉट रियली मेक्स योर लाइफ वर्थ लिविंग. सो कीप फाइटिंग फॉर दैट. और कुछ भी नहीं है तो आप अपने लिए तो हो ना, आप अपने लिए हमेशा खड़े रहना. और करते रहो, मेहनत करते रहो. कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती. मतलब आप वो वाली बात है ना, क्या खोया क्या पाया, यही रह जाएगा ज़िंदगी में. पर ऑन एनी गिवन डे ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. दैट इज़ ऑल वी कैन डू, दैट इज़ ऑल यू कैन डू. तो या ये रनिंग का सिलसिला, स्विमिंग लास्ट समर वॉज अमेजिंग फॉर मी, बिकॉज आई गॉट इन टू दिस जोन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, सब कुछ करना. और फिजिकल चीज़ें आपकी मेंटल चीज़ें बहुत इंप्रूव करती है, ये तो है ही. और फिर मैंने और नए नए एक्सपीरियंसेस करना स्टार्ट करे. आई स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. सोशल इंटरेक्शन है, मैंने एक डांस क्लास भी ज्वाइन करी उसके अराउंड. और फिर मैं नए लोगों से भी बात करने का ट्राई करती रहती थी. और
ऑफ कोर्स मुझे ट्रैवल का थोड़ा सा शौक है, नई नई चीज़ें करने का शौक है, तो फिर मैं अकेले जाके करने लगी सोलो डेट्स और सोलो ट्रैवल, और मैं वो बहुत इंजॉय करती हूँ। अभी ही मैं थोड़े दिन पहले एक लाइक सोलो यूरो ट्रिप से वापस आई, जो कि मेरा मतलब सपना था। जब मैं आ रही थी लंदन, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मैं पेरिस जाऊंगी और अब मैं यूरोप में घूमूंगी पूरे 2 साल। बट देखा मतलब लाइक लाइफ ऐसी रही कि मैं कभी भी नहीं जा पाई, मतलब 2 साल में मैं जा ही नहीं पाई। अब फाइनली जब ऐसे जाने का समय आया, तो मैंने बहुत लाइक कहीं से मुझे वीज़ा मिल गया। मैंने बहुत थोड़ा जुगाड़ नहीं लगाया, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। ये बहुत मुश्किल है अभी अपॉइंटमेंट मिलना, बट समहाउ मुझे ऐसे 15 दिन का वीज़ा मिला था, और फिर आई जस्ट मेड द बेस्ट ऑफ इट एंड आई ट्रैवल्ड ऑल द प्लेसेस इन वॉट एवर कैपेसिटी आई कुड। थोड़ा थोड़ा मैंने ट्रैवल किया, पूरा तो मैं नहीं कर पाई, बट ऑफकोर्स मैं वापस आऊँगी, वापस घूमूंगी यूरोप में भी, अपने पार्टनर के साथ आऊँगी, तो वो अलग एक्सपीरियंस रहेगा। बट ये सोलो वाली चीज़ भी जब मेरी स्टार्ट हुई तो अब तक चली ही जा रही है, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ एक्चुअली अकेले रहना। और जैसे अभी मैं अकेले ही जा रही हूँ वेस्टमिनिस्टर अभी, और आई एम प्रीटी श्योर मैं इंजॉय करूँगी। तो बस हाँ, यही था कि लंदन का चैप्टर अच्छा रहा, और मतलब ऐसा था ना, वक्त मेरा बदल गया। फर्स्ट ईयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सब कुछ खराब था, मैं याद भी नहीं करना चाहती। और सेकेंड ईयर भी खराब ही था एक तरीके से, मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि इन दी एंड मैंने ही आई डिड ऑल द एफर्ट टू गेट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। पर ट्रूथ ऑफ द मैटर इज, हाँ कहीं ना कहीं मैं अकेली तो थी ही। यू डू फील पैंग्स ऑफ लोनलीनेस, डिप्रेशन भी होता है इस कंट्री में, क्योंकि सन नहीं आता है, मतलब कोल्ड मंथ्स आर वेरी ब्रूटल। तो अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आई वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, मे बी आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड स्ट्रॉन्ग इनफ, बट हाँ कुछ कुछ एफर्ट्स करके एवरी डे आई वुड गो बाय। बट आई वुडेंट ग्लोरीफाई कि एकदम ही लोनली रहो तो बिल्कुल ही सबसे अच्छा है। द थिंग इज, वी आर ह्यूमन्स, वी नीड सोशल इंटरेक्शन। मतलब मॉडरेशन में सब चीज़ अच्छी है, मॉडरेशन में आपको मिलना भी चाहिए लोगों से, मॉडरेशन में आप का ये नीड है कि आप किसी से बात करो। और बाहर कंट्री में थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो मैं ग्लोरीफाई नहीं करूँगी, इट वॉज हार्ड, इट वॉज वेरी हार्ड। एंड जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही थी उसमें तो और भी हार्ड था, मतलब ट्राइंग टू मेंटेन अ जॉब, इट इज़ अ टैक्सिंग जॉब, फिर सब चीज़ें करने का ट्राई कर रही हूँ, किसी तरह कर रही हूँ। थैंकफुली इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। एंड आगे का चैप्टर क्या रहेगा ये मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये चैप्टर, लंदन का चैप्टर, एकदम अच्छे नोट पे क्लोज हो रहा है, और सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, टचवुड, ठीक है। और कुछ भी मैं बुरी फीलिंग्स लेके यहाँ से नहीं जा रही हूँ। जो मिला वो ले लिया, जो छूट गया वो छूट गया, ऐसा ही मैं बिलीव करती हूँ। और आई होप आगे का चैप्टर और भी अच्छा रहे, और जो भी चीज़ें मैंने इस दौरान लर्न करी, एट द वेरी लीस्ट मैं उन टीचिंग्स को आगे लेके जा सकूँ। और आई रियली होप आई कुड मेक इट बिग इन दिस लाइफ। आई रियली डू होप, हैविंग सीन कि जब कुछ भी नहीं होता है तो आपको कितना बुरा लगता है, और जब कुछ एक होप मिल जाती है ना, तो उस होप को पकड़ के ना बस निकल लेना चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, फिर ना छोड़ देना चाहिए अपनी इनहिबिशंस को, छोड़ देना चाहिए अपने लिमिटिंग बिलीव्स को, बस उसको पकड़ो और निकल पड़ो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है दोस्त, कुछ भी हो सकता है। और दुनिया बदलते देर नहीं लगती, जैसे बोलते हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ मेरी दुनिया बदलेगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर स्टिकिंग बाय, थैंक यू अगर आपने ये पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है। आई रियली होप एवरी वन इन दिस वर्ल्ड get what they want, like not like kill someone or something like this, but like छोटी छोटी खुशियाँ भी लोगों की पूरी हों, ठीक ठाक लोग जी पाए, राइट। बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग है इस लाइफ में, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते, बट उसमें भी सब लोग अपना छोटा सा नेस्ट, छोटा सा घर बना सके। दिस इज़ माई ओनली होप फॉर पीपल, एवरीवन, जो देख रहे हैं, नहीं जो उनके लिए भी और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी, और मेरे लिए भी। मैं यही prayer, I pray for that. And thank you guys for watching this video so far. I'm sorry if it felt like just a random assortment of words, but अगर कुछ भी आप इससे take away कर पाए हो तो I would really like if you can tell me in the comments. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please like it, share it with your friends, comment on it, and if you really like my channel, I would
be very thankful if you can support me by subscribing to it. मैं बहुत ही जल्द बताऊंगी कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सो फार. आई होप यू हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल डे एंड आई होप यू हैव एन इवन वंडरफुल लाइफ. बाय बाय, टेक केयर.